नमस्ते बच्चों। मैं सभी बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे कैसे हैं? आज हम लोग एक नया सेशन आपके पास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग आपको जो है क्या दिखाएंगे। आज हम लोग जो नया सेशन करने वाले हैं उसमें हम लोग जो है आपको MCQ session करेंगे. So before we begin, we will provide you with some instructions, and you need to follow those instructions to attempt the MCQ questions. तो बच्चों, MCQ questions करने के लिए हम लोग आपको जो है कुछ instructions प्रोवाइड करेंगे। वेलकम टू तो आपको जो है इस instructions को ध्यान से सुनना है। ओके? कई स्कूलों में हमने OMR शीट प्रोवाइड किया गया है जिसमें इस तरह के बबल शीट है। तो पहले और कई स्कूलों में जो है रिटर्न शीट्स है। तो बच्चों, जो बच्चे OMR शीट को फॉलो करेंगे उनके लिए मेरे मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, एन MCQ सेशन. Okay, so before we begin, we will provide you some instructions, and you need to follow those instructions to attempt the MCQ questions. तो बच्चों, हम लोग जो है MCQ स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाएंगे और आपको जो है उसको फॉलो करना है। जिन बच्चों के पास बबल शीट्स है, यानी कुछ स्कूल्स में जो है OMR शीट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनके लिए भी अलग इंस्ट्रक्शंस है, और जिन स्कूल्स में बच्चे पेपर्स में लिखेंगे उनके लिए भी अलग इंस्ट्रक्शंस है। तो बच्चों, जिन स्कूल में OMR शीट प्रोवाइड किया गया है उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। the MCQ answering system. Your school would have been given a bubble sheet. This is called a bubble sheet. In this, first you have to write school name. Remember, you should write school name only in English in capital letters. For example, I am writing CS हरा हुआ. This is only example. I write this as example, but you should write your school name like this in English in capital letters only. Try to write in big letters, not small letters. Okay, this is the first thing. Second thing is test number. Before starting the MCQ exam, Vidya Shakti teacher will display a test number on the screen. You should write that number here. For example, I am writing 146. This is only for example. Actually, Vidya Shakti teacher will display that number. Each test is different. Only that number you should write. This is only for example. Next thing is roll number. In your school, as per attendance, you will be given a roll number. That number you should write. For example, if your roll number is 104, you should write 104 in these three boxes. If your, again this is example only, in case your roll number is 2 digit, for example 34, you should write 34 like this. In case your roll number is only single digit, for example 5, you should write like this. Hope this is clear. Again, the roll number, test number, school name, these are all examples that I have given. You should write the actual ones for your school and your roll number. Don't do anything on this roll number bubbles below that. Okay, 0 to 9 is given. Don't do anything on that. The next thing is Vidya Shakti teacher will be displaying one question at a time on the screen.
that question will have 4 options, answer options A, B, C, D. You should think, write, shade or color the correct bubble. This is same like Nipun exam. For the first question, if the answer is B, you should write, you should shade B. Use black pen. Do not use pencil. Either black pen or blue pen. Don't use pencil. You should write, you should shade this bubble. Then the Vidya Shakti teacher will show the second question. For that question, what is the right answer? If the right answer is D, again you shade this like this. Shade it fully, okay? Do not smudge. Do not shade two bubbles at all. For one question, there should be only one answer. So, do not shade two bubbles. If you have made it wrong, leave it. I repeat, this is only for example. For the right answer, based on the question, you should shade the correct bubble. Like this, all the 20 questions you will be shading. Do not write anything else on the bubble sheet. This is very, very important. Do not write your name. Do not write your class. Do not write your section. Do not. Only school name, test number and roll number should be there. All the answer bubbles you should correctly shade. Do not smudge. Do not crumple this paper. This is very, very important. The paper should be clean. Do not write anything. Do not put any line anywhere. This is important. If any of these sheets do have any lines or unwanted shading or unwanted names, etc., that answer paper will be rejected. Thank you. All the best. Jai Vidya Shakti. Jai Hind. Jai Bharat. तो बच्चों, आप लोगों ने सभी इंस्ट्रक्शन सुने। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट स्कूल नेम इन इंग्लिश इन कैपिटल लेटर। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टेस्ट नंबर लिखना है जो हम आपको दिखाएंगे, और रोल नंबर एज पर योर अटेंडेंस। ओके, जैसे अभी आपको बताया गया, अटेंडेंस के हिसाब से आपको करना है। आपको 20 क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और ऑप्शंस जो है, आपको एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन जो है आपको बबल करना है, और जो जो इंस्ट्रक्शंस इसमें बताए गए हैं वो सभी आपको फॉलो करना है। यूज ब्लैक और ब्लू पेन, डोंट यूज पेंसिल। ओके, पेंसिल या कोई भी दूसरा पेन आपको जो है यूज नहीं करना है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको क्या करना है बच्चों, फॉलो करना है। चलिए अब हम जो है, जो बच्चे जिनको जो है OMR शीट नहीं मिला गया है वो कैसे करेंगे, उसमें उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जिन स्कूल में OMR शीट नहीं प्रोवाइड किए गए हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। तो हम देखते हैं वो किस तरह से रिटर्न शीट में करेंगे। Welcome to Vidya Shakti MCQ answering system. This is a handwritten answer sheet. Those schools which have not received MCQ bubble sheets, they can use this thing. You should use only the ruled notebook. Do not use unruled notebook. This is the first thing. Ruled notebook only must be used. First thing should be school. You have to manually write school, write everything in big capital letters. School. Then after that, for example, I write CS Hara Hua. This is example only. You should write your school name. It should be only in English. It should be only in capital letters. It should be in big letters. Okay. Second thing is test. T-E-S-T. There's a colon symbol there. Test. Before starting the test, Vidya Shakti teacher will display the test number. Each test is different. That test number you should write. For example, if the teacher displays 153, you should write like this. This is example only. Whatever the Vidya Shakti teacher displays, that test number you should write here.
and write legibly. Do not strike anything, do not score out anything. Next thing is roll number. This roll number is as per the attendance. For example, if your roll number is 74, you write 74 like this. Whatever is the roll number that is given as per the attendance in your school, you should write this. Again, the school name, test number, roll number, these are all the examples that I have written. Don't write this. You should write your actual school name, the test number displayed by Vidya Shakti teacher, and the roll number of you, actual roll number of you. Then Vidya Shakti teacher will display question. One by one, teacher will display. For the first question, you should read, think, choose the correct answer. If the first question correct answer is B, write B. Again, do not score out, do not strike. If you have written wrongly, leave it, no problem. Okay, these questions are for only understanding, not for evaluation. Okay, for then Vidya Shakti teacher will display the second question. For that question, if the answer is C, again to write C. For the third question, if the answer is A, right answer is A. The answers B, C, A that I have written, these are all only for examples. For each question, what is the correct answer, you should write that. Like this, all the 20 questions Vidya Shakti teacher will display. You should choose the correct answer, write that particular thing. For example, if and for the question number 5, you have written, say for example, this is D. For question number 5, you do not know the answer. Do not leave it blank. Write something A, B, C or D. Do not leave it. Do not leave it blank. If you do not know the answer, write at least A or B or C or D. Don't leave it. Right? The next thing is very, very important. Do not write your name on this sheet. Do not write your class. Do not write your section. Do not draw any line or put any drawing. Do not do anything else apart from this. Question 1 to 10 should be like this. 11 to 20 should be on the right hand side. It should be 1 followed by dot, 2 followed by dot, same way, 10 followed by dot, same way on the right hand side. Leave some gap here between left hand side row, right hand side row, 11, 12 dot, 13 dot. Do not put like open bracket, 11 close bracket. Do not do like that. Do not put any angle brackets. Do not put any arrow marks. It should be, the question should be number dot. Answer should be either A or B or C or D in capital letters only. If you put arrow marks, if you put brackets, if you put angle brackets, or if you draw any line, if you smudge this or crumple this paper, that answer paper will be rejected. These answers and names I have given only for examples. You should write the actual ones when the test is going on. Thank you. All the best. Jai Vidya Shakti. Jai Hind. Jai Bharat. Hope the instructions are clear to you. तो आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ वो आपको क्लियर हो चुका है. तो हम लोग स्टार्ट करें हमारा एमसीक्यू सेशन. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको जो है क्या करना है, एक एक करके जो है आंसर्स जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से जो है आपको करना है. तो हम लोग जो है अभी हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. सब उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए. सो गेट रेडी. सो हियर इज आवर एमसीक्यू सेशन. तो बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेस्ट नंबर लिखना है. तो इसमें जो टेस्ट नंबर आपको दिया गया है वो आपको लिखना है 1421. ओएमआर शीट जिन बच्चों को मिला है वो जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से करना है. जो रिटर्न शीट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, यू हैव टू राइट द नंबर 1421.
टेस्ट नंबर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। बिल्कुल केयरफुल होकर आप लिखिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। तो मेरे बच्चे सभी टेस्ट नंबर ध्यान से लिखिए। 1421। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश, साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड जीके। सभी आराम से टेस्ट नंबर लिखिए, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। ओके, जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है, स्कूल का नाम, रोल नंबर, यू हैव टू राइट दैट ऑल। जैसे ही आपका लिखना हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चंस एक एक करके शुरू करेंगे। आराम से लिखिए, गलती मत कीजिए। टेस्ट नंबर 1421। स्कूल नेम, रोल नंबर सभी आपको करना है। आई होप सभी का हो चुका है। तो हम लोग एमसीक्यू सेशन की तरफ चले, एक एक करके क्वेश्चंस डिस्प्ले करना शुरू कर दे। ओके, अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम टाइम देंगे आपको। नहीं तो वी विल स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1। और जब क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाएगा, आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन आपको देखना है। आपको जो है ऑप्शंस को सही से समझना है, और उसके बाद ही सिर्फ आप उत्तर दोगे। क्योंकि कोई भी आप उसमें क्या नहीं कर सकते, कटिंग्स आप उसमें नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है, अपना टाइम लो, और उसके बाद ही आप क्या करोगे, ऑप्शन को करोगे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। ओके, हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है। रिया प्लेस द गिटार ब्यूटिफुली। रिया प्लेस द गिटार ब्यूटिफुली। ऑप्शंस: ए प्लेस, बी ब्यूटिफुली, सी रिया, डी द। तो इसमें से नाउन कौन सा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। टाइम लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए। देन ओनली यू हैव टू बबल और यू हैव टू राइट द आंसर। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। रिया प्लेस द गिटार ब्यूटिफुली। ए प्लेस, बी ब्यूटिफुली, सी रिया, डी द। हो गया सभी का? अगर आपका हो चुका है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ध्यान से कीजिए। और लास्ट में हम आपको एक और बार सभी क्वेश्चंस डिस्प्ले करेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप क्या करोगे, लास्ट में एक और बार चेक कर सकते हो। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से वर्ब है। ए जंप, बी रेड, सी क्विकली, डी टेबल। आप अपना समय लीजिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप क्या करोगे, आंसर को करोगे। और अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम उसके हिसाब से दोबारा आपको दिखाएंगे। ओके, वी विल शो यू अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब? ए जंप, बी रेड, सी क्विकली, डी टेबल। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? हम लोग आगे बढ़ जाए। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें से आपको एडजेक्टिव चूज करना है। सेंटेंस है, द टॉल बिल्डिंग टचेस द स्काई। द टॉल बिल्डिंग टचेस द स्काई। तो बच्चों इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? ए बिल्डिंग, बी टॉल, सी स्काई, डी टचेस। ए बिल्डिंग, बी टॉल, सी स्काई, डी टच। कौन सा है उसमें से एडजेक्टिव, वो आपको चूज करना है। टाइम लीजिए, ध्यान से लिखिए। समय है सभी के पास, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग समय लीजिए और उसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। और कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं कमेंट करना है। डोंट कमेंट आंसर्स इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, बच्चे लिख रहे हैं, एग्जाम है, उन्हें लिखने दीजिए। आंसर्स कोई अभी कमेंट नहीं करेगा। जिनको ओएमआर शीट दिया गया है वो आंसर्स उसमें करेंगे। जिनको नहीं दिया गया है वो अपना शीट लेंगे, पेपर लेंगे, रूल नोटबुक का पेपर होगा वो, और उसमें जो है आपको करना है जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सभी का हो चुका है? यस, ओके। तो हम लोग जो है अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको कंजक्शन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। तो बच्चों इसमें से कंजक्शन कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ए वांटेड, बी गो, सी बट, डी रेनिंग।
आप अपना समय लीजिए और आंसर्स बिल्कुल ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, identify the conjunction in the sentence. I wanted to go out, but it was raining. A wanted, B go, C but, D raining. चलिए बच्चों, हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप ये सभी का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। अब देखिए, आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें से एडवर्ब कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस है ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। ऑप्शंस, ए रन्स, बी ही, सी फास्ट, डी नन। तो इसमें से जो है एडवर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद ही आप आंसर को करोगे। ओके, आपके पास समय है, समय की कमी नहीं है, आपको ध्यान से करना है। शैल वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आगे की तरफ बढ़े? ओके, यस। तो लेट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी का हो चुका है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इज ए प्रिपोजिशन? तो इसमें से जो है प्रिपोजिशन कौन सा है वर्ड, वो आपको देखना है। ए इन, बी वॉक, सी हैप्पी, डी बर्ड। तो आपको जो है इसमें से विच वर्ड इज ए प्रिपोजिशन, वो आपको देखना है कौन सा है, कौन सा है वो आपको करना है। ध्यान से ऑप्शंस देखिए और उसके बाद ही आप करोगे। ए इन, बी वॉक, सी हैप्पी, डी बर्ड। ध्यान से देखिए और अपना समय लेकर कीजिए। ओके, हो गया बच्चों? तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज गेट रेडी टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, choose the pronoun in the sentence. Choose the pronoun in the sentence. She is my best friend. तो ये जो सेंटेंस दे रखा है, she is my best friend, तो इसमें से आपको क्या चूज करना है? प्रोनाउन चूज करना है। ए फ्रेंड, बी बेस्ट, सी माई, डी शी। इसमें से जो आप प्रोनाउन है वो आपको चूज करना है।
ध्यान से देखिए और लिखिए। हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरे बच्चों का हो गया तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ छूट गया है तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। Motion along a straight path is called. Motion along a straight path is called A. Circular motion, B. Periodic motion, C. Oscillatory motion, D. Rectilinear motion. अब यहां से 8th क्वेश्चन से आपका साइंस डिस्प्ले हो रहा है, साइंस क्वेश्चंस डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप देखिए, हम आपका जो 8th क्वेश्चन है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे स्ट्रेट पाथ के मोशन को? ए सर्कुलर मोशन, बी पीरियोडिक मोशन, सी ऑसिलेटरी मोशन, डी रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग जो है 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक और बार दिखाते हैं बच्चों आपको। अभी जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो है दिखाएंगे। ओके, सभी रेडी रहिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। Which of the following is a non-renewable resource? Which of the following is a non-renewable resource? A. Solar energy, B. Wind energy, C. Coal, D. Water. इसमें से जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? ए सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी कोल, डी वाटर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए।
आप अपना समय लीजिए और जो है आपको क्या करना है, ध्यान से आंसर्स करने हैं। ओके, हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द SI unit of length is, the SI unit of length is, तो जो है इसमें SI यूनिट पूछा गया है लेंथ का, कौन सा है? A सेंटीमीटर, B मिलीमीटर, C मीटर, D किलोमीटर। ध्यान से देखिए और आपको ध्यान से करना है। तो इसमें पूछा गया है द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन सा है लेंथ का? ए सेंटीमीटर, बी मिलीमीटर, सी मीटर, डी किलोमीटर। ओके, ध्यान से देख के लिखिए। हो गया बच्चों? चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ? जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ में, क्या है, कौन सा है? ए सन, बी एयर, सी वाटर, डी सॉइल। चलिए बच्चों, आपको जो है क्या करना है, ध्यान से करना है। अभी हम एक और बार आपको दिखाएंगे। ओके, ओके, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ? हो गया? जल्दी से देखिए और आपको जो है करना है। ओके,
What is the main source of energy for life on Earth? A sun, B air, C water, D soil. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सबका हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is not a standard unit of measuring length? इसमें से जो है कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ को मेजर करने का? ए किलोमीटर, बी हैंड स्पैन, सी सेंटीमीटर, डी मिलीमीटर। Which of the following is not a standard unit of measuring length? A kilometer, B handspan, C centimeter, D millimeter. आराम से कीजिए, ध्यान से आपको जो है आंसर्स करने हैं। चलिए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आप सबका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13। What is a major threat to our forest cover? What is a major threat to our forest cover? तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसके लिए मेजर थ्रेट क्या है? A, an increase in wildlife. B, natural disasters like floods. C, human activities like deforestation. डी इंक्रीज्ड रेनफॉल। तो इसमें से जो है मेजर थ्रेट कौन सा है हमारे फॉरेस्ट कवर के लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ही सिर्फ आप आंसर कीजिएगा। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सभी बच्चों का हो चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टू मेजर द लेंथ ऑफ ए curved line, to measure the length of a curved line, you should use। आपको अगर कर्व्ड लाइन दे रखा है तो उसको कैसे मेजर करोगे, उसके लिए क्या यूज करोगे? ए रूलर, बी ए पीस ऑफ थ्रेड, सी ए मेजरिंग टेप, डी ए हैंड स्पैन। तो आपको जो है अगर कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट करना है तो आप लोग उसके लिए क्या यूज करोगे? ए रूलर, ए है ए रूलर, बी है ए पीस ऑफ थ्रेड, सी है ए मेजरिंग टेप, डी है ए हैंड स्पैन। आराम से ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आप अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। हाउ कैन यू determine if an object is in motion? How can you determine if an object is in motion? कैसा पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है? A, if it is big,
B, if it makes a sound. C, if it is heavy. D, if it changes position. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर्स को जो है सोच समझकर आपको आंसर करना है. How can you determine if an object is in motion? A, if it is big. B, if it makes a sound. C, if it is heavy. D, if it changes position. हो गया सभी का? ओके. यस, मेरे बच्चों का हो चुका है ना? आगे बढ़े हम लोग. कोई बात होने से आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं. यस. तो हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. तो बच्चों यहां पर आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग और जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. तो उसको जो है आप ध्यान से आपको करना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड नॉट फैक्ट. इसमें से जो है कौन सा जो है ओपिनियन पर बेस्ड है, ना कि फैक्ट पर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड नॉट फैक्ट. ओके. तो चलिए, ए. ऑप्शन ए है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. बी, द सन rises in the east. C, chocolate is the best flavor. D, earth revolves around the sun. तो आपको देखना है, ऑप्शंस ध्यान से देखिए और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड नॉट फैक्ट. ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद कि आप क्या करोगे आंसर्स को. यानी आपको आंसर जो है क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद ही करना है. टाइम आपके पास है, क्वेश्चन देखिए, देन यू हैव टू आंसर. चलिए, अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके. यहां तक सभी का हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 17. अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है. ओके. ध्यान से क्वेश्चन को देखना है. विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. तो यहां पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर ऑप्शंस हम पढ़ेंगे. तो इसमें से जो है कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा द क्वेश्चन मार्क, उसके लिए आपको सबसे पहले ये सारे को ध्यान से देखना है. तो देखिए, 15 उसके सामने दे रखा है 30. 20 उसके सामने दिया हुआ है 40. 25 उसके सामने क्वेश्चन मार्क है. तो आपको बताना है ये 25 जहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसमें से कौन सा नंबर रिप्लेस करोगे. ए ए ऑप्शन है 45. बी ऑप्शन है 50. सी ऑप्शन है 55. डी ऑप्शन है 60. ध्यान से देखिए और आपको बताना है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. यहाँ के क्वेश्चन मार्क में यहां से कौन सा नंबर जो है रिप्लेस होगा. आराम से कीजिए, टाइम लीजिए और आराम से आपको करना है.
कोई जल्दी नहीं है, टाइम लीजिए अपना और सोच समझ के आपको जो है आंसर करना है। हो गया सभी का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हो गया ना सभी का? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 18, ध्यान से सुनना है आपको। ओके। इफ ऑल रोसेस आर फ्लावर्स एंड some flowers fade quickly, which statement is true? इसमें क्या बोल रखा है? इफ ऑल रोसेस आर फ्लावर्स, अगर सभी रोज अगर फूल है, एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, और कुछ फ्लावर्स जो है बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें से सही कौन सा है? ध्यान से इसमें आपको अपना लॉजिक यूज करना होगा। तो ऑप्शन सुनिए। ए, ऑल रोसेस फेड क्विकली, तो जो स्टेटमेंट दे रखा है इसमें से जो है सही कौन सा है बोल रहे हैं। ए ऑप्शन है ऑल ऑल रोसेस फेड क्विकली। बी, नो रोज फेड्स क्विकली। सी, सम रोसेस मे फेड क्विकली। डी, रोसेस आर नॉट फ्लावर्स। तो आपको क्वेश्चन देखना है। इफ ऑल रोसेस आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? ए, ऑल रोसेस फेड क्विकली। बी, नो रोज फेड्स क्विकली। सी, सम रोसेस में फेड क्विकली। डी, रोसेस आर नॉट फ्लावर्स। टाइम लीजिए अपना और कीजिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द बाखरा नंगल डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर? तो इसमें जो है एक डैम के बारे में पूछा गया है। हमारा बाखरा नांगल डैम जो है वो किसके अक्रॉस बिल्ड किया गया है, कौन से रिवर के? ए, गंगा। बी, ब्रह्मपुत्रा। सी, सतलुज। डी, यमुना। ए, गंगा। बी, ब्रह्मपुत्रा। सी, सतलुज। बी, यमुना। तो कौन से रिवर के अक्रॉस ये बिल्ड किया गया है? भाखरा नांगल डैम जो है कौन से रिवर के अक्रॉस जो है ये बिल्ड हुआ है, बनाया गया है? ए, गंगा। बी, ब्रह्मपुत्रा। सी, सतलुज। डी, यमुना। हो गया बच्चों? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए और जो है अपना टाइम लेकर आंसर कीजिए।
कोई भी स्कूल्स प्लीज आंसर्स कमेंट मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में किसी को भी आंसर्स कमेंट नहीं करना है। बच्चों को जो है आंसर्स लिखने दीजिए, अभी कोई भी आंसर्स को कमेंट नहीं करेगा। ओके, तो सभी बच्चों का 19 क्वेश्चन हो चुका है। यस, चलिए अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए। हु was the फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस? स्पेस में जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन है? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनिधा विलियम्स, डी विक्रम साराभाई। तो जो है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस? ए कल्पना चावला, बी राकेश शर्मा, सी सुनिधा विलियम्स, डी विक्रम साराभाई। ऑप्शंस ध्यान से देखिए और आपको जो है आंसर सही से करना है। हो गया सभी का? ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, है ना? चलिए अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एमसीक्यू सेशन जो है समाप्त हो रहा है। हम आपको एक और बार सारे क्वेश्चंस को जो है दिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, सभी को जरा एक और बार देख लेना है। ओके, तो आज का जो टेस्ट नंबर है वो सभी ने सही लिखा है, जरा देख लीजिए स्क्रीन पर। ओके, जो टेस्ट नंबर है वो आपने जो है सही लिखा है या नहीं लिखा है, इसको जो है आपको क्या करना है, सही से देखना है। तो टेस्ट नंबर 1421। ओके, चलिए अब हम एक एक के करके हम आपको जो है एक और बार क्वेश्चंस को जरा जल्दी से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। Ria plays the guitar beautifully. A plays, B beautifully, C Ria, D the. Question 2. Question number 2. Which of the following is a verb? A jump, B read, C quickly, D table. Question number 3. Choose the adjective from the sentence. Choose the adjective from the sentence. The tall building touches the sky. The tall building touches the sky. तो इसमें से जो है adjective, A building, B tall, C sky, D touch. Question number 4. Identify the conjunction in the sentence. I wanted to go out, but it was raining. I wanted to go out, but it was raining. A wanted, B go, C but, D raining. Question number 5. Identify the adverb in this sentence. He runs fast. Options: A runs, B he, C fast, D none. Question number 6. Which word is a preposition? Question number 6. Which word is a preposition? ओके, इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान से जो है देखना है। चलिए आपने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस पूछ रखा है एक और बार, तो हम आपको दिखाते हैं एक और बार। जो है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है आपने डिमांड कर रखा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको एक और बार दिखाते हैं। ओके, तो आप जिनका नहीं हुआ है वो जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। रिया प्लेज द गिटार ब्यूटिफुली। ओके, तो इसमें से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन को। रिया प्लेज द गिटार ब्यूटिफुली। ए प्लेज, बी ब्यूटिफुली, सी रिया, डी द।
चलिए, हमारे स्कूल ने बोल रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, इसलिए हम जो है एक और बार दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहा गया है, तो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब? Which of the following is a verb? A. Jump. B. Read. C. Quickly. D. Table. टाइम लीजिए और लिखिए। ओके, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो आप लिख सकते हो आप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब। चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तीसरा क्वेश्चन। चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस द टॉल बिल्डिंग टच द स्काई। ए बिल्डिंग, बी टॉल, सी स्काई, डी टच। ओके, तो मेरे वहां के बच्चों का जिन्होंने पूछा था हो चुका है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और बार आप फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। किसी का अगर नहीं हुआ है तो वो देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग। ऑप्शंस है, ए वॉन्टेड, बी गो, सी बट, डी रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 5। Identify the adverb in this sentence. He runs fast. Adverb आपको आइडेंटिफाई करना है। A runs, B he, C fast, D none. ओके, आगे बढ़ जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 6। विच वर्ड इज ए प्रिपोजिशन? इसमें से प्रिपोजिशन कौन सा है आपको देखना है। ए इन, बी वॉक, सी हैप्पी, डी बर्ड। और कोई भी क्वेश्चन रिपीट करना है तो आप बोल सकते हैं, हम रिपीट करेंगे। ओके, अभी जो है आप देख लीजिए। ओके, सभी का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। चूज द pronoun इन द सेंटेंस। चूज द pronoun इन द सेंटेंस। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शंस है, ए फ्रेंड, बी बेस्ट, सी माई, डी शी। ओके, हो चुका है सभी का ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8। Motion along a straight path is called. Motion along a straight path is called A. Circular motion, B. Periodic motion, C. Oscillatory motion, D. Rectilinear motion. Question number 9. Which of the following is a non-renewable resource? Which of the following is a non-renewable resource? A. Solar energy, B. Wind energy, C. Coal, D. Water. Okay. Question number 10. The SI unit of length is. The SI unit of length is A. Centimeter, B. Millimeter, C. Meter, D. Kilometer. Question number 11. What is the main source of energy for life on Earth? What is the main source of energy for life on Earth? A. Sun, B. Air, C. Water, D. Soil. किसी का कोई छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12।
Which of the following is not a standard unit of measuring length? पूछा गया है which of the following is not a standard unit of measuring length? A kilometer, B hand span, C centimeter, D millimeter. Okay, 13th question. What is a major threat to our forest cover? What is a major threat to our forest cover? A. An increase in wildlife. B. Natural disasters like floods. C. Human activities like deforestation. D. Increased rainfall. Question number 14. To measure the length of a curved line, you should use A. A ruler. B. A piece of thread. C. A measuring tape. D. A hand span. Question number 15. How can you determine if an object is in motion? How can you determine if an object is in motion? A. If it is big. B. If it makes a sound. C. If it is heavy. D. If it changes position. Question number 16. Which of the following is based on opinion and not fact? Which of the following is based on opinion and not fact? A. Water boils at 100 degrees Celsius. B. The sun rises in the east. C. Chocolate is the best flavor. D. Earth revolves around the sun. Question number 17. Which number will replace the question mark? 15 के सामने दे रखा है 30, 20 के सामने दे रखा है 40, 25 के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर क्या आएगा? A 45, B 50, C 55, D 60. Question number 18. If all roses are flowers and some flowers fade quickly, which statement is true? If all roses are flowers and some flowers fade quickly, which statement is true? A. All roses fade quickly. B. No rose fades quickly. C. Some roses may fade quickly. D. Roses are not flowers. Question number 19. The Bakra Nangal Dam is built across which river? The Bakra Nangal Dam is built across which river? A. Ganga, B. Brahmaputra, C. Satluj, D. Yamuna. And our last question. Who was the first Indian to travel to space? Who was the first Indian to travel to space? A. Kalpana Chawla, B. Rakesh Sharma, C. Sunita Williams, D. Vikram Sarabhai. तो बच्चों ये था हमारा एमसीक्यू सेशन. आई होप सभी का हो चुका है. कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो यू कैन कमेंट, देन आई विल शो यू दैट क्वेश्चन. अदरवाइज वी विल एंड अवर सेशन. ओके, तो मैं उम्मीद कर रही हूं आप सबका सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. तो हम लोग जो है यहाँ पर ये सेशन एंड करते हैं. अगले ऐसे ही सेशन में फिर हम मिलेंगे. तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद बच्चों. थैंक यू सर.